Namaskar and good afternoon to everyone connected on this virtual platform on prospects of soya processing industry. On behalf of the Soybean Processors Association of India, popularly known as Sopa, and also on my personal behalf, I welcome all the online stars from the galaxy of the agriculture universe and of course the learned speakers. सोपा के इस सेमिनार वेबिनार का विशेष महत्व है। एक तो कोरोना लॉकडाउन से अस्त व्यस्त हो चुके कारोबार को हम ट्रैक पर लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और कोरोना बाद की चुनौतियों का भी हमें सामना करना है। कोरोना महामारी ने निर्यात व्यापार को प्रभावित किया तो पोल्ट्री उद्योग लगभग ठप सा हो गया है, यानी विदेश और घरेलू मार्केट में मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। आज के वेबिनार का एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है अगली फसल के समय सोयाबीन की खरीद। आप सबको यह पता है कि हाल ही में सरकार ने किसानों को अपनी उपज सीधे बेचने की अनुमति दे दी है। The Indian economy is undergoing one of the most critical times in our independent history. The current medical emergency caused by the COVID-19 pandemic forced an unprecedented social and economic lockdown on the entire country. Now most likely that coronavirus is here to stay and we must learn to live with it. Vaccines and medicines are still at trial stage and may be a long time away. The central government has now taken the courageous decision to enact a central law binding on the states and one stroke of pen reformed the archaic mandi system to the great relief of everyone, the farmers and the industry including. Locust attack and monsoon uncertainty is one also not helping us any. In this background, that Sopa thought of holding this webinar, get views from the experts on prospects and outlook of our industry, and also views of an acclaimed expert in weather. घरेलू मार्केट में सोया मील का हमारा सबसे बड़ा ग्राहक है पोल्ट्री फीड उद्योग। याद करें कि कभी सोपा ने अभियान चलाया था, सोया खाइए, प्रोटीन पाइए, या सोया खाइए और स्वस्थ रहिए। हमें लोगों को यह समझाना होगा कि सोयाबीन उत्पाद प्रोटीन का सबसे सस्ता सोर्स है जो इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। कोरोना से बचने के लिए आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इकोनॉमी however cannot wait for the pandemic to abate and the show must go on. Indian economy and a large part of our population is dependent on the agriculture for livelihood. It is for this very reason that our country will not face for any food shortage or starvation. किसानों को कृषि उपज सीधे बेचने की अनुमति सोया प्रोसेसर्स के लिए वरदान है। हम तो 2 साल से मांग कर रहे थे कि हमें सीधे सोयाबीन की खरीद करने किसान से खरीदने की अनुमति मिले। हमें खरीद का ऐसा सिस्टम डेवलप करना होगा कि किसान बिना हिचक ट्रैक्टर ट्रॉली सीधे हमारे प्लांट्स पर लाए। There are 3 major factors to ensure successful growth in agriculture and agri-industry sector of the country. The first, fair and profitable price to the farmers, profitable processing sector, government support to prevent imports by regulating import duty. There are several instances where support of the government, both in terms of MSP, that is the minimum support price, and import restrictions, has turned an entire sector to finally become self-sufficient. Dairy, poultry, pulses, cotton and sugar are such examples which have reached export levels from a situation of shortage in just a few years. One such sector which is languishing is oilseeds sector of the country. मित्रों, आप सब जानते हैं
1986 1986 में मेरे आदरणीय डैडी पद्मश्री डॉक्टर नेमनाथ जैन सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया सोपा के चेयरमैन थे। 1985 में देश में सूखा पड़ा था, सोयाबीन का उत्पादन बहुत कम हुआ था। आदरणीय डैडी जी ने कृषि वैज्ञानिकों की मदद से सोया उत्पादन बढ़ाने का अभियान चलाया। सोया उगाइए, खुशहाली पाइए। सोपा ने तब सिर्फ 70 दिनों में 30 लाख से ज़्यादा किसानों को सोयाबीन की साइंटिफिक खेती करने के लिए प्रेरित किया। सोया उत्पादन 2 गुना 16 लाख टन हो गया था। मेरे लिए गर्व की बात है, आज मैं सोपा चेयरमैन हूँ और आप सब आज किसानों से सीधे सोयाबीन खरीदने का अभियान लॉन्च कर रहे हैं। मेरा सुझाव है, इस अभियान का हम नामकरण करें, सीधे सोया बेचो, वाजिब मूल्य पाओ। मित्रों, सोया प्रोसेसर्स को सीधे किसानों को सीधे उपज तभी हमें बेचेंगे जब वे तोल, मोल और बोल को लेकर संतुष्ट होंगे। तोल से मेरा आशय है फसल की तुलाई, मोल से मतलब है उपज की क्वालिटी के अनुरूप वाजिब मूल्य, और बोल से मेरा आशय है हमारी उनसे बातचीत और हमारा व्यवहार। हमारे कर्मचारी बात करें तो उन्हें अपनापन महसूस होना चाहिए। माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा कि कृषि उत्पादों की सीधी बिक्री से खरीदारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। मंडी व्यापारी के साथ अब सोया प्रोसेसर्स नए खरीदार होंगे। सीधे खरीद बिक्री का पर कोई मंडी शुल्क नहीं लगेगा, यानी मंडी शुल्क भी खत्म हो रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि खरीदार को किसानों को तत्काल भुगतान हमें करना होगा। इस व्यवस्था के साथ किसान पहली बार हमसे सीधे व्यापार करेंगे। किसान भ्रमित हो सकते हैं, उनका भ्रम दूर करने और उनका विश्वास जीतने का एक ही मंत्र है, फेयर डीलिंग। हमें हमारे परिसर में सोया किसानों के स्वागत का भी बंदोबस्त करना चाहिए। स्वागत से मेरा तात्पर्य है हमारे प्लांट पर किसानों के लिए केटरिंग, वॉशरूम सुविधा तथा उनके चाय पानी मिले, ट्रॉली पार्किंग सुविधा के साथ किसानों को बैठने और प्रतीक्षा करने का बंदोबस्त हो। मुझे याद है कि कभी किसानों का अपने आड़तियों से नज़दीकी रिश्ते होते थे। ये आड़ती उनकी उपज खरीदने के साथ दुख सुख में उनकी मदद करते थे। जो सोया प्रोसेसर सोया किसानों के पारिवारिक अनाज आड़तीय बन जाएंगे, किसान उनके ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे। वे माउथ पब्लिसिटी भी करेंगे, यानी खुद भी आएंगे और दूसरे किसानों को भी लाएंगे। द फार्मर इज फ्री टू सेल हिज प्रोड्यूस एनीवेयर गिव्स सच अ ग्रेट रिलीफ both to the farmers and the buyers of farm produce, the end sellers or processors as the case may be. If the soybean farmers bring his loose stock to our doorstep where we process it for oil and oil meals, he and we can negotiate a fair price for the fair average quality. सोयाबीन किसानों को उपज बेचने के लिए प्रेरित करने में सोपा कार्य योजना बना रही है। आपके सुझावों का भी स्वागत है। सोपा किसानों तक यह बात समझाना चाहती है, उनकी उपज के बल्क यूजर्स और उनके बीच मध्यस्थ न होंगे तो दोनों का भला होगा। उपज की लोडिंग, अनलोडिंग और ट्रॉली पैकेजिंग के बारदाने का खर्च बचेगा। हम सीधे ट्रॉली खरीदेंगे, खरीद में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी। इन सबका लाभ किसानों को मिलेगा तो हमें शुद्ध सोयाबीन प्रोसेसिंग के लिए मिलेगा। I also wish to state that MSP based procurement by government has certain limitations. MSP must be replaced by the Bhavantar scheme based on the yield and farm acreage, which will be more equitable. The oilseed sector as a whole and soybean in specific needs to be supported by the government in the following ways. Increase acreage under soybean cultivation through basic reforms as already stated. Raise import duties on all oils and oilseeds like palm oil and soybean. Encourage through education consumption of soya oil and soya protein as the lowest cost and healthiest protein rich in isoflavones and phytosterols and completely safe for diabetics.
I suggest that GST should be removed for all agriculture products since this is a food item meant even for the poorest of the poor for their daily needs. Incentivize export of soya meal and other derivatives. To establish mini call centers so the farmers can reach the processors easily. किसान इस सेंटर से पता कर सकेंगे कि किस सोया प्रोसेसर्स की लोकेशन क्या है। सोया किसानों को सोया प्रोसेसर्स के फ़ोन नंबर मिल जाएंगे तो वो आसानी से उस जगह पहुंच सकेंगे। ऐसी सारी जानकारी का पोस्टर हम पंचायत कार्यालय में लगवा सकते हैं, अखबारों में विज्ञापन भी दिए जा सकते हैं। On weather conditions, I would like to say that we can only pray to the rain gods to be merciful for the coming season and the years to come. अंत में मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का हृदय से आभारी हूँ। किसानों को अपनी उपज सीधे बेचने की अनुमति भारतीय कृषि के लिए क्रांति साबित होगी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कॉल टू मेक इंडिया आत्मनिर्भर और सेल्फ रिलायंट, a $5 trillion economy by 2024 will bring a new reforms in soya industry. I am sure that the event we can implement all reforms and encourage farmers and processors. It is only a matter of time before India achieves both the dreams of our Honorable Prime Minister. अंत में बस इन्हीं कामनाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। So Davish, that's a good news for you. You buy soybean at 3,200 rupees, and if that happens, I'm sure we can export also. What do you say? Yeah, I think what he says, I mean, if you again go towards a record output in the ensuing season, and you also have a large carry forward as he has suggested 12 to 15 lakh tons, all put together with the current consumption pattern of Indian poultry and aquaculture and food industry, probably we may not be able to consume the kind of production prospect as see unless we again encounter any inclement weather conditions which affects our production prospects. Otherwise, everything looks quite promising on the production front. Now, what is more important to us is the consumption, and that is the demand. This thing. But with 3,300 of bean prices, certainly we would be able to again penetrate in the export markets very effectively, and would be able to, I would say, cover our lost ground to a great extent. I believe unless there is some kind of bigger intervention of the government to buy the stocks in a big way, the prices would be, I think, depressed unless there is something happens with the crop, per se during the cropping time, because we are still almost 4 months to go by the time we harvest the new crop. This is my feeling. As I totally agree with them, the oils side looks more, I think, positive in the demand side because of the opening of the lockdown, and we can see the demand again reviving, and overall the supply side, despite record production worldwide for soybeans, and I think palm also now into its peak time. Still the Indian I think consumption ought to go up after we have opened up, because during the lockdown we have almost lost about 1.5 million tons of demand consumption really. So soybean seed has to be somewhere in that line. Mrityunjay, since you don't want to moderate, then come as an expert. Now you keep talking on Mandi Live every day. What is the price? You grill Birenji, you grill me, you ask everybody what is going to the price, and this and that. Now you are here to tell us what do you think the price is going to be. I'm not an expert, sir. Tell us without, no, I think you will give us the best thing.
experts are always biased. You're not biased. Please tell us. No, no, I don't have much knowledge about price and all, but मैं हाँ ये है कि मैं कमोडिटी कवर करता हूँ तो मुझे इश्यूज पता रहते हैं कि क्या इश्यूज हैं अभी अलग कमोडिटी को लेकर के क्या चल रहा है मार्केट में। तो एक्सपर्ट तो बहुत सारे बैठे हैं, ये लोग बेहतर तरीके से जवाब देंगे। और मैं कुछ सवाल अभी जब शुरुआत अपनी हुई थी इस चर्चा की तो उसमें एक फ्री मार्केट की बात हुई कि एपीएमसी को सरकार ने एक कमोडिटी मार्केट को एक आज़ादी मिली है सरकार की तरफ से कि अब कहीं भी कारोबार होगा, मतलब एपीएमसी का जो कंपल्सन था वो खत्म कर दिया गया है। तो मैं दाविश जैन जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये ठीक है कि सुनने में प्रथम दृष्टया ये लगता है कि बहुत अच्छा फैसला है सरकार का कि किसान अब कहीं भी अपना उत्पाद बेच पाएंगे, अपनी फसल को बेच पाएंगे, लेकिन क्या हमारे किसान या फिर जो हमारे देश का जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी मौजूदा हालात में, क्या इतना इक्विप्ड है, इतना सफिशिएंट है कि किसानों को उनके घर के आसपास, उनकी खेतों के आसपास पर्याप्त मार्केट मिल जाएगा जिससे वो अपनी फसल बेच पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एक बार फिर से उनके साथ चीटिंग होगी, जो दिक्कत एपीएमसी में आ रही थी पहले कि किसान जब बहुत दूर से अपनी फसल लेकर आते थे और उन्हें हर हाल में बेच कर ही जाना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, फसलें चोरी हो जाती थी मंडियों में, इस तरह की खबरें भी आती थी। तो ऐसा तो नहीं कि हमारे किसान के लिए ये बात ठीक है कि अगर उनके घर के आसपास मार्केट मिलेगा तो उन्हें आसानी होगी, लेकिन कैसा मार्केट मिलेगा? क्या मैनिपुलेटेड मार्केट मिलेगा? क्या उन्हें गलत प्राइस ऑफर किया जाएगा? क्या हमारे किसान उसके लिए तैयार हैं और क्या हमारे पास इस तरह के पर्याप्त बाजार उपलब्ध हैं? आप ग्राउंड पर क्या देख पाते हैं, जो कि आप लगातार इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं लंबे समय से, आपके पास क्या जानकारी है सर इसको? Before David ji comes in with an elaborate answer, I must give you a very short answer. आपकी ये जो बड़ी सारी भावनाएं हैं कि ऐसा होगा कैसा होगा, आई कैन टेल यू ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इससे किसानों को फायदा होगा, नुकसान किसी को नहीं होने वाला है। देविड जी प्लीज टेक ओवर। जय जी, आपने जो बात कही है, मैं आपको थोड़ा इसका पीछे बैकग्राउंड में ले जाऊं तो पिछले कुछ वर्षों से हम ये लगातार सरकार से अनुरोध कर रहे थे कि सोयाबीन जैसी कमोडिटी जो है उसको जनरली बिना प्रोसेसिंग का इसका डायरेक्ट यूटिलाइजेशन नहीं होता। तो जैसे हम देखते हैं शुगर केन को या गन्ने को भी जो शुगर मिल में लेके लाया जाता है, उसको मंडी जाने की जरूरत नहीं है, आसपास की शुगर मिल्स में अपना वो गन्ना लेके जाता है और उसका वहां पर उसकी वो सेल करता है। हम ये कह रहे हैं, हमने कभी ये नहीं कहा कि आप मंडीज को, एपीएमसी का सिस्टम को टोटल डिमोलिश कर दो या बंद कर दें। हम कहते हैं कि किसान के पास एक ये ऑप्शन उनको दिया जाए कि वो चाहे तो सीधे प्लांट्स पर डायरेक्टली जा सकता है या किसी भी वेयर हाउस पे, साइलो पर या किसी ट्रेडर के पास भी जाकर वो अपना उसका प्रोड्यूस बेच सकता है, अगर उसे ये लगता है कि उससे ज्यादा दाम या उससे अच्छा उसको डील मिलती है। और मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें एक बड़ी हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होने वाली है। हर प्लांट अपनी तरफ किसान को आकर्षित करने के लिए उससे अच्छे से बेहतर मूल्य और बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश करेगा। जहाँ तक सवाल है उसको पेमेंट का, तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर ही लिया है कि दे हैव टू बाय ऑलमोस्ट ऑन कैश बेसिस। ठीक बात है, उसकी बात नहीं है। तो किसान की चॉइस है कि वो कहाँ पे, जहाँ उसे बेहतर डील मिले, बेहतर सुविधा मिले, बेहतर रियलाइजेशन मिले। एक मिनट पाठक जी, एक मिनट में थोड़ा सा कोई काउंटर सवाल आए हैं जो दाविश जैन साहब ने कहा बहुत अच्छा है कि किसानों को अच्छा भाव मिले, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जो आपने, मैं चीजों को, पता नहीं आप इसे पॉजिटिवली लेंगे या नेगेटिव लेंगे, मैं चीजों को पहले नेगेटिव तरीके से देखना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप नेगेटिव तरीके से देखते हैं तब चीजें ज्यादा क्लियर होकर सामने आती हैं। आपने गन्ने का किया, गन्ने में केन रिजर्वेशन एरिया तय किया जाता है कि 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेडियस में यही मिलें खरीद पाएंगी। और कई बार ऐसी खबरें हमने भी चलाई हैं और आती भी हैं मार्केट में कि कई बार वहां पर एक मोनोपोली होती है चीनी मिलों की, और गन्ना किसान परेशान होते हैं कि वो वहां नहीं बेचेंगे तो कहाँ बेचेंगे, कोल्हू वाले को नहीं बेच पाते हैं। तो मैं इसका नेगेटिव साइड ये देख रहा हूँ, और हो सकता है कि इसमें नेगेटिव ना हो, अगर आप क्लियर कर देंगे तो ये आसानी होगी समझने में। कई बार ये होता है, आपने कहा कि प्लांट पे जाके बेच पाएंगे, कई बार ये भी तो हो सकता है कि प्लांट अपनी मोनोपोली करे, औने पौने दाम पर ऑफर करे किसानों को, किसानों के पास कोई चॉइस ना हो, एक कार्टेलाइजेशन बनाया जाए अलग अलग प्लांटों की तरफ से, और किसान के पास उतना ऑप्शन नहीं होता है सर कि एक्सप्लोर करे वो बार बार 20 मार्केट को। एपीएमसी में एक सरकार का, मैं एपीएमसी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एपीएमसी में कम से कम एक रूल एंड रेगुलेशन होता था गवर्नमेंट की तरफ से
और अलग अलग क्राइटेरिया बनाए जाते थे। क्या ये सारी चीजें प्लांट में इंप्लीमेंट होंगी? क्या आप इस बात का भरोसा देंगे किसानों को कि कार्टेलाइजेशन नहीं होगा, ये मोनोपोली नहीं होगी और किसानों को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा? क्या इस बात का खतरा है या बिल्कुल सब नहीं है? इसका मैं गलत समझ इसका रहा हूँ? इसका खतरा मुझे तो बिल्कुल नजर नहीं आता, बल्कि किसान के लिए ये फायदे की बात है कि उसके पास अब ज्यादा आउटलेट्स हैं, वो मंडी भी जा सकता है और अपने क्षेत्र में जो भी सोयाबीन प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं या जो भी एक्सपोर्टर्स हैं या जो भी साइलोज या ट्रेडर्स हैं, उनको जो भी उनके पास अच्छी डील देगा, वो वहां पर एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होगी। हम सब लोग अपने तरफ से किसान को आकर्षित करने के लिए अपने मूल्य व अपने व्यवहार से उसको कोशिश करेंगे कि वो उनके पास आए, तो उसको एक ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। हमने सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया कि उसमें ये केवल प्रोसेसिंग यूनिट्स तक के लिए उसको सीमित नहीं किया। उसका दायरा, वो दायरा मार्केट एरिया को जो डिफाइन किया गया वो कोई भी हो सकता है, वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है जो कि जिसके पास एक पैन नंबर है। तो ये किसान के लिए तो बहुत बड़ी संभावनाएं बन गई हैं और मैं समझता हूँ कि यही एक चेंजिंग, ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है, इतना बड़ा रिफॉर्म है एग्रीकल्चर में, जो मुझे समझ में नहीं आया कि इतने सालों तक क्यों नहीं उसको करने में सरकार को क्यों संकोच था। कि मंडी के अंदर भी हमने देखते हैं कि जो भी उसको मंडी का प्रोड्यूस लेता है उसको उसके अंदर वैल्यू एडिशन होती है, इंसिडेंटल कॉस्ट एडिशन होती है, जो कि किसी के लिए फायदे की बात नहीं है। अगर हमारे प्रोसेसिंग यूनिट पे आएगा तो अच्छा। दूसरी बात हम देखते हैं कि हमारा प्लांट कहीं 200 किलोमीटर दूसरे से भी सोयाबीन खरीद रहा है, तो 200 किलोमीटर दूर वाला प्लांट वो हमारे एरिया से भी। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने बहुत सारी दुविधाएं दूर की हैं। मेरा ये नेगेटिव सवाल पूछने का मकसद यही था कि अगर किसानों के जहन में या जो हमारे पार्टिसिपेंट्स अभी हमें सुन रहे हैं उनके जहन में अगर इसको लेकर कुछ, क्योंकि देखिए जब भी सरकार का कोई फैसला आता है तो पॉजिटिव बातें शुरुआत में बहुत हो जाती हैं कि बहुत अच्छा कदम है, क्रांतिकारी कदम है, ऐतिहासिक कदम है, इस तरह की शब्दावली हम लगातार सुनते हैं। लेकिन नेगेटिव सवाल का जब जवाब आ जाता है तो जो कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल दाविश जैन साहब और पूछना चाहता हूँ, फिर बाकी जो पैनलिस्ट है उनके पास जाएंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या होना चाहिए आउट ऑफ एपीएमसी? बाजार का क्या मैकेनिज्म होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि जो केन में मैकेनिज्म है, जो गन्ना खरीद को लेकर के मैकेनिज्म है, क्या वो मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए या वहां पर भी कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, पूरा फ्री हो, जिस प्लांट को जब चाहे जैसे चाहे वो खरीदें, जिस किसान को जैसे चाहे जब चाहे वो बेचें? क्या मैकेनिज्म आप आउटसाइड ऑफ एपीएमसी मार्केट करें? बिल्कुल साहब, आपने ठीक कहा, किसान हर तरीके से आजाद है, खरीदने वाला भी बेचने वाला भी। कल मैंने अपना एक भाव, आज मान लीजिए मैंने 3700 रुपए का एक भाव वहां पर अपना निर्धारित किया आज की खरीद के लिए, पर हमारा दूसरा साथी प्लांट जो है उसको 3740 रुपए का उसने घोषित किया अपना प्राइस। किसान हो सकता है कि मेरे यहाँ लाने के बाद उसको जब मालूम पड़े कि भाई 3740 वाला भी प्लांट आज यहाँ पर बाजार में आया है, तो मैं क्यों ना मेरा माल उसको बेचूं, तो हो सकता है वो ट्रॉली मेरे यहाँ से निकाल के वहां पर चले जाए। तो उसको तो कई जगह आकर्षित करने के लिए एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा और उसके अंदर उसको बेस्ट डील मिलेगी, वो डेफिनेटली उसको अवेल करेगा। तो ये तो किसान के लिए नए ऑप्शन, नए ओपनिंग एवेन्यूज बन गए हैं। ठीक तो बात ये है, तो ठीक बात है। 100% किसान के हक की और फायदे की बात है। और इसके लिए बहुत खर्चे जो हम अननेसेसरी जो उस पर लगा रहे हैं, बारदाना पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, पाला और दुनिया भर के इंसिडेंटल और ट्रांसपोर्ट खर्चे, वो सारे बचेंगे। उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी किसान ही होगा। इसका फायदा किसान को डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि अगर मंडी टैक्स बचेगा, सब बचेगा, तो किसान को और मंडी का टैक्स है जो अननेसेसरी है, जो मंडी हम जा ही नहीं रहे हैं, उसको अवेल नहीं कर रहे हैं, तो सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, उसको जरूरत नहीं है मंडी की, तो वो पैसा भी उसको किसान को जुड़ के मिलेगा मेरे हिसाब से। First of all, congratulate Sopa for doing so many things for real farmers. And then can Sopa think there Dr. Davish Jain already explained that there should be the consumption at the indigenous level also at particular. So can Sopa think of any publicity mission like the रोज संडे हो या मंडे रोज खाओ, ये चलता था, सोयाबीन का कंजम्पशन इंडिया लेवल पर चलने के लिए। दूसरा, how Sopa will collaborate with institute, as our institute has a prestige, so develop silos and soybean quality using AI and IoT cloud. So this indigenous technology will help great way. Manoj, we will about collaborating with your institute, we can discuss a proposal as to what you have developed, and if it is very useful for the industry, we'll certainly look at it. The other question about Sunday, Monday, Rose Cow Monday,
Davish ji, please respond. पाठक जी, इस पे सुझाव है कि आप संडे मंडे रोज खाओ अंडे, इसकी जगह अपना स्लोगन आप दे दें, हो कोई भी दिन रोज खाओ सोयाबीन. Actually वही है, पर हमारे हमारे Davish ji is a great one for coining slogans. So I want to hear from his slogan. कोई slogan दीजिए Davish जी, बढ़िया सा. नहीं मृत्युंजय जी, अभी आई थिंक स्लोगन तो मैंने अपनी बात में कहा ही है. अगर आपने शायद सुना हो तो सोयाबीन इटसेल्फ इज सोया खाइए, प्रोटीन पाइए, सोया खाइए और स्वस्थ रहिए. आई मीन दिस इज व्हाट in this time of pandemic we need all of us to build our immunity, strong immunity, and protein is something which is body builder, and protein is what we are deficient in our diet. We even the country suffers from the malnutrition to a great extent. So how can we add soybean to our daily palate or daily diet in some or the other form? So the soya protein is one of the cheapest source of protein with very high profile of amino acids, which is so important for our health. तो अगर हम लोग अपना रोज के खाने में किसी तरीके से सोयाबीन का समावेश करेंगे तो उसमें कुछ ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होगी, पर ये इट में वर्कआउट लाइक अ फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस. सर उनका सवाल ये था, और अवेलेबिलिटी समय की मांग है, और सोयाबीन को तो कई तरीके के उत्पाद डेवलप हो सके हैं दुनिया में. अमेरिका में 600 प्रोडक्ट सोयाबीन से निकाले गए हैं. हमारे ऑनरी सेक्रेटरी श्री गिरीश पतवानी जी भी कई तरह के सोयाबीन के प्रोडक्ट्स उत्पादन कर रहे हैं, वैल्यू एडेड. तो इसके अंदर तो ये अपने आप में एक बून है फॉर इवन फॉर वेजिटेरियन सोसाइटी. सोयाबीन को हम बड़ी के रूप में या ग्रेन्यूल्स के रूप में या और भी किसी तरीके से सोया फ्लोर हमारे आटे के साथ मिलाकर खाने से में काफी चीजें हमें हेल्थ के लिए बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होंगी. और पोल्ट्री जो भी इसको अदर कंज्यूमर हैं उनके लिए वैसे भी हमारे सोयाबीन जो है एज अ वेरी वाइटल इंग्रेडिएंट टू मीट द प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ द फीड. सर देवी जी, उनका सवाल ये था कि will Sopa like to start a campaign? That means it boils down to the Sopa members to put together some money and start a campaign for promoting soya food. That was his question. I think this is high time that we should start thinking into that direction. It is the people who have products to offer for food applications. If they jointly work out something, a campaign could be made up and drawn, and I think it would be very timely, and it would increase the awareness of soybean as a very important protein source, which unfortunately is still very primitive among the masses. So protein for all kind of a campaign we should try and work out. And I would request all our fellow soybean processors and producers to come on board and work on this thing, which would be a long-term benefit for the industry per se, and we can create a better demand within the country for soya products. Thank you very much, sir. Migration of labor from cities to villages has already concluded. Reverse will not take place too much. What can we together do, and anyone can answer this, to build centers of economic activity around the rural areas so that they develop, and that is where the country is going to develop. And all of us, our futures are all linked to the development of those rural areas. Well, I think it is true that a lot of migration has already taken place, and especially from the bigger cities like Mumbai, and we have seen people from Delhi. But as far as our processing industry is concerned, they are largely dependent on still the local workforce. Even if this large number of people have already moved away back to their natives, I personally feel that they still have, since have worked into urban areas and into industries, they are also of a view of that they should try and find some kind of employment or rozgar for themselves as self-employed people. And there we can see some of the agro-based activities taking place where they could develop their own cottage scale industries, and some downstream products like the soybean can have some of the value added soybean products for the benefit of those rural masses.
and such other activities, or they could resort to some more scientific way of farming, helping. Otherwise they've moved away from the farming as an occupation. They could be involved back into that, and that probably would also give way to improvement into farm practices and some better technology being used for better productivity to be achieved, which is some of the major concerns for us now. So I think we should not take it as something which has gone. Yes, and mostly our industries have also to resort to some of the better automation processes, where we could be lesser dependent on manual handling of our material, and it is more technology based material handling systems are put in place to handle this stocks. This is my feeling. पाम ऑयल पे हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी इंपोर्ट पे, तो हमने इतना सब कुछ किया डाइवर्ट, लेकिन हमने कोई पाम प्लांटेशन की तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया? एक तो ये बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है, अपने पास 100 लाख टन करीब इसमें प्रोडक्शन कर सकते हैं, एक नई इंडस्ट्री, एक नया रोजगार। एक पाम इज अ प्लांटेशन क्रॉप जहाँ पर प्रोडक्शन उसका 7वें साल से मिलना शुरू होता है, और उसके लिए हमें उस तरीके से जलवायु और वैसी तरीके की उसकी खेती के लिए एनवायरनमेंट चाहिए। उसके लिए करीब करीब 2000 मिलीमीटर की कम से कम रेनफॉल होना चाहिए। एक तो ये रिक्वायरमेंट है। दूसरा, 6 साल तक जो जेस्टेशन पीरियड है उसके लिए केवल ये कारपोरेट स्तर पर की जा सकती है। अदरवाइज फार्मर्स के लिए बड़ा डिफिकल्ट है कि वो उतना समय तक बिना किसी रिटर्न के इसके ऊपर जाए। और इसके लिए जो शायद थोड़ा सा एरिया जो आइडेंटिफाई किया गया है वो आंध्र प्रदेश का कोस्टल रीजन है, और शायद अंडमान निकोबार या कहीं पर जो उस जगह पर उसी टाइप की जलवायु मिलती है। हो सकता है इसका एक बड़ा रूप में हम कुछ सरकार के उन्होंने कदम उठाए हैं, पर एक समय इसमें अपने आप एक मिनिमम टाइम तो लगेगा। पर उसके साथ ही हम जब ये देखते हैं हमारे दूसरे जो ऑयल सीड हैं, जैसे सोयाबीन, जिससे हमें सिर्फ ना तेल मिलता है बल्कि प्रोटीन मिलता है। दूसरी तरीके हम मस्टर्ड देखें, वो भी हमारे यहाँ आज करीब 70-75 लाख टन की क्रॉप है। इन सोयाबीन हमारे करीब 1 करोड़ टन की क्रॉप है। ग्राउंड भी हमारे करीब 70 लाख टन की क्रॉप है। इन तीनों क्रॉप को लगभग हमारे टोटल ऑयल सीड बास्केट की 80% कंट्रीब्यूशन होता है। और एक जो दूसरी बाय प्रोडक्ट है वो कॉटन सीड है, क्योंकि वो कॉटन की क्रॉप में से निकलता है, और वो भी करीब करीब 100 लाख टन से ऊपर है। और इन सब क्रॉप के अंदर से हमें बड़ा मात्रा में तेल मिलता है। पर अगर हमारी रिक्वायरमेंट हम पूरे जो देख रहे हैं करीब 2 करोड़ 30 लाख टन की, तो हमारा अभी भी ये रिक्वायरमेंट बहुत बड़े पैमाने से हमारे सेल्फ सफिशिएंसी से दूर है। पर हम जब बात करते हैं सेल्फ खाद्य पदार्थों की जो हमारे रोजमर्रा के अंदर हमारी रिक्वायर्ड है, चाहे वो खाद्य तेल हो, चाहे हमारी शक्कर हो, चाहे पल्सेस हो, चाहे हमारा फूड ग्रेन्स हो, इनमें जो फूड सिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी या न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के लिए। यहाँ पर प्राइस से भी ज्यादा महत्व है क्या हम हमारे रोज के खाद्य पदार्थों के लिए, खाद्य के नीड्स के लिए क्या हम विदेशों पर निर्भर हों? 130 करोड़ देश जनता का देश इस तरीके की बड़ी रिस्क कभी नहीं ले सकता। हमने देखा पल्सेस के अंदर हमारे किसान को एक बहुत अच्छा मूल्य मिला। एक साल दालों की कीमत बढ़ के 120 से 200 रुपए किलो तक चली गई। उसका नतीजा क्या हुआ? 1 साल 1.5 साल हमारे कंज्यूमर को तकलीफ हुई, पर अगले ही साल लगभग 70 लाख टन एक्स्ट्रा पल्सेस हमने पैदा कर ली, क्योंकि पूरे दुनिया में सबसे बड़ा पल्सेस का कंज्यूमर भारत है, जो 14 मिलियन टन प्रोडक्शन कर रहा था, वो सीधे 21 मिलियन टन पे पहुंच गया, और हम लगभग 1 साल में ही लगभग सेल्फ सफिशिएंसी हमने हासिल कर ली। पाम इज अ प्लांटेशन क्रॉप जहाँ पर प्रोडक्शन उसका 7वें साल से मिलना शुरू होता है, और उसके लिए हमें उस तरीके से जलवायु और वैसी तरीके की उसकी खेती के लिए एनवायरनमेंट चाहिए। उसके लिए करीब करीब 2000 मिलीमीटर की कम से कम रेनफॉल होना चाहिए। एक तो ये रिक्वायरमेंट है। दूसरा, 6 साल तक जो जेस्टेशन पीरियड है उसके लिए केवल ये कारपोरेट स्तर पर की जा सकती है। अदरवाइज फार्मर्स के लिए बड़ा डिफिकल्ट है कि वो उतना समय तक बिना किसी रिटर्न के इसके ऊपर जाए। और इसके लिए जो शायद थोड़ा सा एरिया जो आइडेंटिफाई किया गया है वो आंध्र प्रदेश का कोस्टल रीजन है, और शायद अंडमान निकोबार या कहीं पर जो उस जगह पर उसी टाइप की जलवायु मिलती है। हो सकता है इसका एक बड़ा रूप में हम कुछ सरकार के उन्होंने कदम उठाए हैं, पर एक समय इसमें अपने आप एक मिनिमम टाइम तो लगेगा। पर
उसके साथ ही हम जब ये देखते हैं हमारे दूसरे जो ऑयल सीड हैं, जैसे सोयाबीन, जिससे हमें सिर्फ ना तेल मिलता है बल्कि प्रोटीन मिलता है। दूसरी तरीके हम मस्टर्ड देखें, वो भी हमारे यहाँ आज करीब 70-75 लाख टन की क्रॉप है। इन सोयाबीन हमारे करीब 1 करोड़ टन की क्रॉप है। ग्राउंड भी हमारे करीब 70 लाख टन की क्रॉप है। इन तीनों क्रॉप के लगभग हमारे टोटल ऑयल सीड बास्केट की 80% कंट्रीब्यूशन होता है। और एक जो दूसरी बाय प्रोडक्ट है वो कॉटन सीड है, क्योंकि वो कॉटन की क्रॉप में से निकलता है, और वो भी करीब करीब 100 लाख टन से ऊपर है। और इन सब क्रॉप के अंदर से हमें बड़ा मात्रा में तेल मिलता है। पर अगर हमारी रिक्वायरमेंट हम पूरे जो देख रहे हैं करीब 2 करोड़ 30 लाख टन की, तो हमारा अभी भी ये रिक्वायरमेंट बहुत बड़े पैमाने से हमारे सेल्फ सफिशिएंसी से दूर है। और हम जब बात करते हैं सेल्फ खाद्य पदार्थों की जो हमारे रोजमर्रा के अंदर हमारी रिक्वायर्ड है, चाहे वो खाद्य तेल हो, चाहे हमारी शक्कर हो, चाहे पल्सेस हो, चाहे हमारा फूड ग्रेन्स हो, इनमें जो फूड सिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी या न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के लिए। यहाँ पर प्राइस से भी ज्यादा महत्व है, क्या हम हमारे रोज के खाद्य पदार्थों के लिए, खाद्य के नीड्स के लिए क्या हम विदेशों पर निर्भर हों? 130 करोड़ देश जनता का देश इस तरीके की बड़ी रिस्क कभी नहीं ले सकता। हमने देखा पल्सेस के अंदर हमारे किसान को एक बहुत अच्छा मूल्य मिला। एक साल दालों की कीमत बढ़ के 120 से 200 रुपए किलो तक चली गई। उसका नतीजा क्या हुआ? 1 साल 1.5 साल हमारे कंज्यूमर को तकलीफ हुई, और अगले ही साल लगभग 70 लाख टन एक्स्ट्रा पल्सेस हमने पैदा कर ली, क्योंकि पूरे दुनिया में सबसे बड़ा पल्सेस का कंज्यूमर भारत है, जो 14 मिलियन टन प्रोडक्शन कर रहा था, वो सीधे 21 मिलियन टन पे पहुंच गया, और हम लगभग 1 साल में ही लगभग सेल्फ सफिशिएंसी हमने हासिल कर ली। दाविश जी, थोड़ा सा चाहूंगा सर, इसमें आपको बड़ा अच्छा मुद्दा आपने छेड़ा है। एक बड़ा अच्छा आपने मुद्दा छेड़ा है। ये आपने ठीक बात कही कि जब दालों के दाम 2015 में 200 रुपए चले गए, तो अगले साल बहुत बड़े पैमाने पर खेती हुई और हमने बहुत ज्यादा दलहन पैदा किया। लेकिन नतीजा क्या हुआ सर? नतीजा ये हुआ कि तुअर के किसान कि मतलब तुअर किसानों की जो नींद है वो छिन गई थी। वो 30-30, 40-40% नीचे के भाव पर बेचने को मजबूर हो रहे थे। आज भी जो चने के किसान हैं उनको 25 से 30% कम के भाव पर बेचना पड़ रहा है फसल एमएसपी के मुकाबले। तो किसान ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन हमारी पॉलिसी ऐसी है जिससे किसानों को मतलब कहीं से कोई भरोसा नहीं मिल पा रहा है, और फिर वो अगली बार मुंह मोड़ते हैं कि भाई दलहन खेती में कोई फायदा नहीं होने वाला है। नहीं मृत्युंजय जी, इसका उस फ्रंट पे भी हमें सोचना होगा। आप 1 मिनट मुझे दीजिए, इसको जवाब देने दीजिए। जब हमारे पास सेल्फ सफिशिएंसी होगी उसके बाद भी हमने 50 लाख टन का आयात कर लिया, तो वो हमारे पास जो इतना बड़ा सरप्लस ग्लट क्रिएट हो गया, तो उसके अंदर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा यूजर और जिन लोगों ने फॉरेन कंट्रीज में भारत के लिए प्रोडक्शन किया था वो यहाँ लाके डंप किया। तो हम अगर सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर ही हम कायम रहते तो शायद ये स्थिति नहीं निर्मित नहीं होती। भाव एक इसीलिए पॉलिसी वाली बात मैंने इसलिए कही आपको। तो वाजिब दाम बने रहते, और अगले सालों के अंदर आपने देखिए दाम लगभग वाजिब लेवल पर आ गए। तो ये स्थिति आज से 10 साल 20-15 साल बाद हो सकती है कि तिलहन के अंदर भी हो। एक बार हमें अधिक मूल्य देकर किसान को आकर्षित करना होगा कि वह इंडिजिनियस ऑयल सीड का प्रोडक्शन करे, और जो क्रॉप हम 1 करोड़ टन पे अटके हुए हैं या 70-75 लाख पे अटके हुए हैं, इनके अंदर कम से कम 2 गुना हम इसका प्रोडक्शन बना लें। भारत सरकार ने ऑलरेडी 30 मिलियन टन जो हमारा भी ऑयल सीड के ऊपर जो अटका हुआ प्रोडक्शन है उसको 45-46 मिलियन टन पे ले जाने की बात कही है, और हमारी रिक्वायरमेंट तो शायद इससे भी बड़ी होगी। अगर हमें सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जाना है, शायद हमारे को उसको डबल करना ही होगा। क्या कारण है कि इस देश के अंदर 300 मिलियन टन यानी 30 करोड़ टन खाद्यान्न और अनाज हम पैदा करते हैं, कि क्या कारण है कि हम 6-7 करोड़ टन तिलहन पैदा नहीं कर सकते? इस देश के अंदर हम सभी बड़ी क्रॉप के अंदर सेल्फ सफिशिएंट हैं, चाहे हमारा कपास हो, चाहे हमारा गन्ना हो, चाहे हमारा पल्सेस हो, चाहे हमारे फूड ग्रेन्स हो। हमारी रिक्वायरमेंट हम फुलफिल पूरी कर रहे हैं 130 करोड़ के देश के लिए। तो क्या कारण है कि हम सिर्फ एक ऑयल सीड के अंदर पिछड़ रहे हैं? सिर्फ एक पॉलिसी। मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ दाविश जैन साहब, एक सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत देर से मेरे मन में ये सवाल आ रहा था। ये इम्पोर्ट ड्यूटी की बात अभी हो रही है कि इम्पोर्ट ड्यूटी क्यों बढ़ना चाहिए, और आप लोगों ने कहा कि बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कब बढ़ना चाहिए। होता क्या है कई बार कि जब किसानों अपने देश में जो मेजोरिटी फार्मर हैं उनकी होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है क्रॉप को बहुत लंबे समय तक अपने पास रखने की। होता यह है कि कई बार उस वक्त में ये फैसला आता है ड्यूटी बढ़ाने का
जब किसानों के हाथ से माल निकल चुका होता है, और तब ड्यूटी बढ़ने का जो फायदा अभी आप लोगों ने गिनाया कि फार्मर को मिलता है, वो फायदा फार्मर को नहीं मिल पाता है। तो क्या, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ड्यूटी बढ़ाना ही काफी है, या बिल्कुल उस वक्त पे ड्यूटी बढ़नी चाहिए जब किसानों की फसल आ रही हो? पहला सवाल। दूसरा ये कि कंज्यूमर के नाम पर जब कई बार हम खेलते हैं, होता ये है कि अभी भी जो होलसेल का प्राइस है आपका सीड का, चाहे वो मस्टर्ड हो, चाहे वो सोयाबीन हो, या ऑयल का ही होलसेल का प्राइस हम देख लें, और जो रिटेल में कंज्यूमर खरीदते हैं, इन दोनों के बीच इतना बड़ा गैप है। कोई मैकेनिज्म नहीं है कि अगर 70 रुपए किलो थोक में सोया तेल के भाव चल रहे हैं तो रिटेल में क्या भाव मिलेगा, रिटेल में 150 क्यों मिल रहा है, 160 रुपए क्यों मिल रहा है? इसका कहीं से कोई जवाब नहीं है। तो इस दो सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ड्यूटी क्या बिल्कुल उसी वक्त में बढ़नी चाहिए जब किसानों के हाथ में माल हो, जब किसानों की नई फसल आ रही हो, और ये जो रिटेल और होलसेल के बीच जो एक बड़ा गैप है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? बिल्कुल, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किए। पहली बात कि ड्यूटी बढ़ाकर किसान को क्यों किसान ड्यूटी हम क्यों बढ़ा के ली जाए, या किस स्टेज पे ली जाए? मैं समझता हूं कि हायर ड्यूटी तो समय की मांग है। अगर हम तिलहन में सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जाना चाहते हैं तो हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। हायर प्राइस का तेल भी हमें कंज्यूम करने के लिए भी अपना एक, और उसका मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा किसान कंज्यूमर पर बोझ नहीं पड़ता, क्योंकि एक फैमिली मुश्किल से 4 से 5 या 6 किलो से ज्यादा एक महीने में कंज्यूम नहीं करती है तेल। उसका अगर 20 रुपए किलो बढ़ भी गया तो उसका टोटल लागत 100 रुपए महीने की आएगी। पर ये सोचिए कि आज से 10 साल बाद शायद हम लोग अपने देश में जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, हम उसको उतना पैदा यहीं कर रहे होंगे। दूसरी तरफ से बात करिए आपने कि कंज्यूमर के लिए होलसेल और रिटेल के प्राइस में डिफरेंस, मैं भी इस बात से बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि मैंने भी ये देखा है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा गैप है। होलसेल के लेवल तक तो ये प्रॉब्लम नहीं है, होलसेल से रिटेल पे जाने के बाद कई बार इसके अंदर एक बड़ा गैप नजर आता है। तो इसको कम करने के लिए यही तरीका है, जैसे ई कॉमर्स में के अंदर आपने देखा कि जो कंज्यूमर गुड्स हैं या एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर उनको काफी कम दाम पर कंज्यूमर को मिलता है माल। मैन्युफैक्चरर को तो अपना दाम उतना ही मिलता है जितना उसका होलसेल या होलसेल के अंदर से जितना उसका एक मार्जिन कम होता है। मैं समझता हूँ कि अगर मेरे यहाँ कोई चीज अगर जिसकी लागत 80 रुपए किलो की है, तो कंज्यूमर को वो जाते जाते कंज्यूमर के घर पे 100 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके अंदर ही उसको प्राप्त होना चाहिए। 80 रुपए की चीज को कोई 150 रुपए होने का कोई चीज समझ में नहीं है, समझ के बियॉन्ड है। तो इसके अंदर बेटर कंज्यूमर अवेयरनेस और इसके कुछ इस तरीके सिस्टम जो मैं समझता हूँ मीडिया भी अपना एक रोल उसमें अदा कर सकता है कि ये बीच के अंदर अगर ऐसी कोई भी अगर गलत मार्कअप किए जा रहे हैं तो उसको हमें उसकी रोकथाम करना चाहिए, क्योंकि होलसेल पे और प्रोडक्शन लेवल पर ज्यादा प्राइस नहीं है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अगर हम देखें तिलहन के भाव आज से 30 साल पहले या 25 साल पहले देखें तो उसके अंदर कितना इजाफा हुआ, मुश्किल से 2 गुना। क्या हमारी 20-25 साल के अंदर लागत सिर्फ 2 गुना ही बढ़ी है? तो ये, हाँ, इसमें प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़नी चाहिए। हमने इसके ऊपर प्रयास हमारे जारी हैं, और किसान ने अभी नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल जो बनाने के लिए जो गवर्नमेंट ने एक बड़ा बीड़ा उठाया है, इसकी मांग हम पिछले 20 साल से सतत करते आ रहे हैं। मैंने 20 साल पहले इसका मॉडल बना के सरकार को दिया था और उसको हाईएस्ट लेवल के ऊपर हमने पहुंचाया। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, इसमें इसके ऊपर कदम उठाए गए हैं, और आप देखिएगा अगर इसके ऊपर कंसर्टेड एफर्ट्स किए गए तो ये हम अपनी तरफ इंडिजिनस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बड़े हमको उसके परिणाम नजर आएंगे। आई थिंक आई हैव सेड इनफ, बट ओनली आई वांट टू जस्ट थैंक एवरी ऑफ आवर वेरी लर्नेड स्पीकर्स। वी हैड wonderful session, and I am just was connected for last more than 2.5 hours now, close to 3 hours, and I think it is a learning and educative for I think everyone. And we had right from the weather and the locust this thing and some silver linings are also coming up. That we have a better monsoon predicted, although there are also warnings about higher downpour probably in the western Madhya Pradesh. All those things probably, but if there are timely information, the farmer can get themselves ready to face any such eventuality and save their crops. हमने पिछले साल भी देखा उसी तरीके से वीरेन वकील जी ने भी शायद आने वाले समय के लिए हमें बताया कि अच्छा प्रॉस्पेक्ट नजर आ रहे हैं।